Hello and welcome back to the class again. Dear students, today in this class we are going to learn a very interesting story that is written by Leo Tolstoy. The story is titled as The Three Questions. Okay, so let's know something about Leo Tolstoy first. Leo Tolstoy was born on 9 September 1828 and he died on 20th November 1910. He is best known for his novel War and Peace, which was published in the year 1869. The story which we are going to learn in today's class was taken from his collection called What Men Live By, which was first published in the year 1885. So the story, as I told you, is The Three Questions. Okay, so let's try to understand what this story is telling us. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. These three things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. तो एक बार एक राजा के जहन में ख्याल आया कि अगर वो तीन चीज़ें जान सके तो वो कभी नहीं हार सकता। और वो तीन चीज़ें क्या थी कि किस काम को किस वक्त पे करना चाहिए और कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इसलिए राजा ने बहुत सारे लोगों को इन तीनों सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जगह जगह भेज दिया और कहा कि जो भी इन तीन सवालों के जवाब लेके आएगा उसे बहुत ज़्यादा इनाम दिया जाएगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. In reply to the first question, some said, the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, he would do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, and always do whatever seemed necessary at that time. तो कुछ लोगों ने अलग अलग लोगों ने राजा को अलग अलग राय दिया। ठीक है, तो कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और स्ट्रिक्टली उस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसी टाइम टेबल के हिसाब से राजा को काम करना चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा कि कोई भी काम करने के लिए हमें पहले एडवांस में टाइम टेबल हम तैयार नहीं कर सकते, तो राजा को हमेशा ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि कौन सा काम सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। तो जितने भी बकवास चीज़ें हैं, जितने भी फूलिश एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें राजा को छोड़ देना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और जो चीज़ें राजा को लगी कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और वही काम राजा को करना चाहिए। ठीक है। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others, the right time for every action. तो कुछ लोगों ने कहा कि राजा को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ज़रूरत है। राजा को अपने जितने भी अक्लमंद लोग हैं उनका एक ग्रुप बनाना चाहिए और हमेशा उनसे पूछना चाहिए कि किस वक्त पे कौन सा काम करना ज़रूरी है, क्योंकि अकेला राजा हर काम नहीं कर सकता। बहुत सारे फैसले होते हैं तो वो राजा अकेला नहीं ले सकता, तो इसीलिए राजा को काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. And only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. तो कुछ लोगों ने कहा कि राजा को कभी ऐसे फैसले लेना पड़ता है जो वो दूसरों से शेयर नहीं कर सकता। तो ऐसे सिचुएशन में राजा को एक ऐसा पावर होना चाहिए कि वो फ्यूचर में देख सके। तो फ्यूचर में तो कोई नहीं देख सकता कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि राजा को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, जादूगर के पास जाना चाहिए, ताकि वो देख सके कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो राजा को मैजिशियंस की मदद लेना पड़ेगा। तो ये सारे जवाब दिए फर्स्ट क्वेश्चन के जवाब में कि कौन सा काम किस समय पे करना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन के जवाब में लोगों ने क्या बताया? In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests. A few others chose doctors, and yet others said his soldiers were the most necessary.
तो दूसरा क्वेश्चन राजा के जहन में क्या आया था कि किन लोगों की बातें राजा को सुनना चाहिए। तो इसके जवाब में लोगों ने बताया कि राजा को काउंसलर्स की बातें सुनना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, राजा को मजहबी आलिमों की बातें सुनना चाहिए, रिलीजियस प्रीस्ट की बातें सुनना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, राजा को डॉक्टर्स की बातें सुनना चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, राजा को फौजियों की बातें सुनना चाहिए, फौजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा फौजियों की बातें राजा को पहले सुनना चाहिए। तो ये सारे जवाब मिले राजा को दूसरे सवाल के जवाब में। ठीक है, अब तीसरा सवाल क्या था राजा के जहन में? तीसरा क्वेश्चन ये था कि सबसे ज़रूरी काम क्या है दुनिया में, कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। तो टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, others choose fighting and yet others religious worship। तो तीसरे सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने राजा को कहा कि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा को साइंस में ध्यान देना चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा नहीं, फाइटिंग इंपॉर्टेंट है, फाइट जीतना बहुत ज़रूरी है किसी भी किंगडम के लिए, तो राजा को फाइटिंग पे ध्यान देना चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा नहीं, पूजा पाठ ज़रूरी है, जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, जो मजहबी एक्टिविटीज़ होते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, तो राजा को उनमें ध्यान देना चाहिए। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो राजा को इन लोगों की बातों से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। जो 3 सवाल राजा ने लोगों से पूछा, तो लोगों ने उसका अलग अलग जवाब दिया सबने, तो इसलिए राजा को ये सारे जवाब पसंद नहीं आया। तो राजा ने किसी को इनाम नहीं दिया और उन्होंने ये फैसला किया कि वो किसी हेरमिट के पास जाएंगे। उस वक़्त एक हेरमिट रहा करता था उसके इलाके में कहीं दूर, वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। तो राजा ने सोचा कि मैं उस हेरमिट के पास जाऊंगा और इन तीनों सवालों के जवाब मैं उसी से मांगूंगा। द हेरमिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। तो वो हेरमिट एक जंगल में रहता था। ही saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes। ठीक है, तो वो हेरमिट किसी से नहीं मिलता था, वो बिल्कुल सिंपल लाइफ जीता था। इसलिए राजा ने सोचा कि मैं भी सिंपल तरीके से हेरमिट के पास जाऊंगा। राजा ने बिल्कुल सिंपल कपड़े पहने, आम लोगों की तरह कपड़े पहना और वो हेरमिट से मिलने के लिए गया। बिफोर ही रीच द हेरमिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। जब वो साधु के झोंपड़ी के पास पहुंचा, तो राजा ने अपने बॉडीगार्ड से कहा कि तुम आप यहीं रुको, और घोड़े को भी राजा ने वहीं रखा और वो खुद अकेला हेरमिट के पास चला गया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut। तो राजा ने देखा कि साधु अपने झोंपड़ी के पास एक ज़मीन खोद रहा है। He greeted the king and continued digging। हेरमिट ने राजा को ग्रीट किया, हाय हेलो बोला, फिर उसके बाद कंटिन्यू उसने फिर अपना काम करना शुरू किया। The hermit was old and weak, and as he walked, he breathed heavily। तो वो hermit बहुत बूढ़ा था, वो साधु बहुत बूढ़ा था। जैसे जैसे वो काम कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा थकावट फील कर रहा था, महसूस कर रहा था। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right things at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? राजा हेरमिट के पास चला गया और उसने कहा, जनाब मैं आपके पास 3 सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आया हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए सही वक्त क्या होना चाहिए और किन लोगों की मुझे बातें सुनना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है। The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging। हेरमिट ने, उस साधु ने राजा की तरफ देखा, उसकी बातें सुना, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। साधु फिर से काम पे लग गया, अपना काम करना शुरू किया। You are tired, said the king. Let me take the spade and walk in your place। फिर राजा ने कहा, जनाब आप बहुत थके हुए हो, चलिए आप ये स्पेड मेरे पास दीजिए और मैं काम करता हूँ, आप थोड़ा सा आराम कीजिए। Thanks, said the hermit, giving the king his spade। He sat down on the ground। फिर साधु ने राजा का शुक्रिया अदा किया और वो ज़मीन पे आराम से बैठ गया। उसने कहा कि चलिए फिर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप खोदिए ज़मीन। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade।
and said, "Now you rest and let me walk." फिर काफ़ी ज़मीन खोदने के बाद राजा ने हेरमिट से पूछा कि जनाब, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ इन सवालों के लिए। लेकिन साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अब आप रेस्ट कीजिए, मैं काम करता हूँ। But the king did not give him the spade and continued digging. लेकिन राजा ने उनको स्पेड नहीं दिया, वो खुद काम करने लगे दोबारा। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home." 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गया, अब धीरे धीरे शाम होने को आ गया। तो राजा ने कहा कि जनाब, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, अगर आपको ये नहीं पता तो आप बता दीजिए कि आपको नहीं पता है, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। So dear students, this is all about today's class. The rest part we will finish in the next video. Okay? तब तक आपके लिए एक होमवर्क है, आपको यहाँ से पढ़ना है। Here comes someone running, said the hermit. तो ये स्टोरी, ये पोर्शन जो है अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो आपको यहाँ से पढ़ना है एंडिंग तक। ठीक है? You don't worry about that whether you understand it or not. You go for thorough reading. So thank you very much. See you again in the next video.